sample paper number 9 business studies. First question. 1 mark पे हमने करनी है ना, यहाँ स्टार्ट करते हैं. First question is dash refers to producing goods of predetermined specifications, which helps in achieving uniformity and consistency in the output. Standardization. Uniformity and consistency in the output is standardization. Second is the procedure for purchase and sale of securities in a stock exchange involves the following steps: opening of demat account, selection of broker, placing the order, settlement, executing the order. Which of the following choices represent the correct sequence of the steps? ये sequence आपको दिया हुआ है, ये correct नहीं है, आपने यहाँ correct करना है. Options are given A, B, C and D. चेक करिए पहली ऑप्शन कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, उसके हिसाब से कौन सी ऑप्शन होती है? डी. डी और बी. डी 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 में फर्स्ट कौन सी ऑप्शन दी है उसमें? सेकंड स्टेप सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग का डीमैट. तो आप देखो ना ए बी और सी में तीनों में पहली ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, है ना. और सिर्फ डी में सेकंड जो आपका स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर पहले दिया. अगर आपको स्टेप्स याद है तो इसके बाद बचता ही सिर्फ ऑप्शन डी है हमारे पास, बिकॉज वहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन क्लैश ही नहीं होगी. Then number third is which of the following does not come under the dimension of business environment? Emotional. Then lack of coordination results in पहले सॉल्व किया हुआ है आपने, जैसे आप आंसर दे रहे हैं. Delay in the work, duplication of work, overlapping activities and all of this. Choose the correct answer by using the codes given below the column. कॉलम 1 में है grab the opportunities before competitors. पॉइंट ए का ये, पॉइंट बी है it acts as a basis for deciding future course of action for decision making. कॉलम बी में है help in tapping useful reasons resources, helps in tapping useful resources, ये ना हो, ये बनता है वैसे. then first mover advantage and helps in policy making. आपने मैच द कॉलम्स एक्चुअली में ए में, बी में, सी में और डी में कौन सा कहाँ मैच होता है? ए मीन्स ए के साथ सेकंड वाली और बी के साथ थर्ड वाला. इट मीन जो पॉइंट नंबर 1 है कॉलम 2 में दैट इज एक्स्ट्रा है. grab the opportunities before the competitors, yes, first mover advantage, and it acts as a basis for deciding future course of action for decision making, helps in policy making. So option A is there. Then number 6, management is all pervasive because it is required in all types of businesses. Then 7 number is the last step in the process of planning is follow-up action. Follow-up action. Then question number 8. Given below is a list of various functions of different levels of management: maintaining quality of output, coordinating and entangling diverse elements and activities of different departments. Number 3, ensuring that departments have necessary personnel. Number 4, cooperating with other departments for functioning of organization. Minimizing wastage of material, and last is analyzing business environment and its implication for the survival of the enterprise. Which of the above functions are performed by top level management? Options are given. आपने इन 6 में से वो वाली ऑप्शंस जो है चूज करनी है which are the function performed by top level management. डी ये बनने की और भी डी में है सेकंड एंड 6. Second is coordinating and entangling diverse elements and activities of different departments. Okay. Departments की activities को coordinate करना top level management. 6 is analyzing business environment and its implication for the survival of the enterprise is the function to be performed by top level management. बाकी जो department जो है आपके functions वो या तो वो lower level के हैं या फिर middle level के हैं. Then question number 9 is, since more number of people have become more beauty and health conscious, our economy has witnessed an unprecedented surge in the number of health and beauty spas and wellness clinics. Which characteristic of business environment is highlighted in the above question? जो आपको नीचे वो ऑप्शंस दी हुई है इसमें से कौन सा बनता है? Otherwise it is a kind of social environment. ये पॉइंट आया हुआ है
हेल्थ कॉन्शियस होना, ये सोशल एनवायरनमेंट पॉइंट आया हुआ है एक पॉइंट, लेकिन यहाँ उसने फीचर्स के हिसाब से पूछा हुआ है। इंटररिलेटेडनेस है, रिलेटिविटी है, डायनामिक नेचर है, ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। इंटररिलेटेडनेस अदरवाइज तो पूछिए कंपोनेंट कौन सा है, ये एनवायरनमेंट कौन सा है, इट इज सोशल एनवायरनमेंट। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, ये आंसर नहीं है, नोट पूछा है उसने। अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस, ये भी नहीं। इंक्रीजेस इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस इन लॉन्ग रन, ये भी नहीं। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू इंडियन एम्प्लॉइज चिल्ड्रन, ये है। ये कौन सा बनता है, वैसे कौन सा है ये? इट इज सोशल या पर्सनल? सोशल ऑब्जेक्ट, सोशल पर्सनल तो नहीं बनता। पर्सनल में कौन से आते हैं? पर्सनल में कौन से आते हैं? सोशल में एम्प्लॉइज को छोड़ के बाकी सारे आ जाते हैं। क्योंकि एम्प्लॉइज की उसने पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऐसे रख लिया हुआ है, और पर्सनल में जितने एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग वो कर रहा है ना, उनको बेटर वर्किंग कंडीशन देना, उनको बेटर सैलरीज देना, वेजेस देना, इंसेंटिव्स देना, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, ये भी एक एम्प्लॉइज का पर्सनल ही बनता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल इसकी लेनी हो तो पर्सनल लेना चाहिए। एम्प्लॉइज को छोड़ के बिजनेस किसी और के लिए कर रहा है, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज इट इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल फोर्सेस कौन सी होती है? एक जनरल होती है, एक कौन सी होती है? एक कौन सी होती है? स्पेसिफिक। जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है वो कौन सी होती है? स्पेसिफिक। उसमें क्या आता है? कॉम्पिटिटर्स वगैरह, सप्लायर वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं जनरल फोर्सेस। जनरल में कौन कौन से आते हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये सेम इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? अदरवाइज गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अदरवाइज जो है वो स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक है ना, क्योंकि वो एक पार्टी है जो कि बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट है थ्रू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या थ्रू लीगल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इन चार में से ऑप्शन जो है वो इसकी गवर्नमेंट है, सी मनी। अदरवाइज एग्जांपल आपने गवर्नमेंट के लिए तो बाहर लिख ली है आपने दूसरे बारे में स्पेसिफिक। दैट इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग डज नॉट इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स भी है, एनालाइजिंग डेविएशंस भी है, और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक, ये एक्टिव पॉइंट्स है। इसके बाद आपका 13 to 16 कॉम्प्रिहेंशन टाइप है, इसको पढ़िए। 17 to 20 भी कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। 1 मार्कर्स कंप्लीट करिए, इसको डिस्कस करते हैं। 13 है आपका ए फंक्शन, 14 का है बी प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, 15 का है बी डेलीगेशन, 16th इज फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर Centralization of the facts that top management takes all major decisions indicates that organization follows centralization। B बनता है ना, फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर बोथ बी एंड सी, डी ज्यादा अच्छा है। फॉर्मल स्ट्रक्चर मींस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है ना कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं फॉर्मली आ रही हैं, वो इनफॉर्मल नहीं है वहाँ पे। या तो बी भी वैसे ठीक बनता है, लेकिन ऑप्शन आपको सी में दी हुई है ना फॉर्मल, तो डी ज्यादा बेटर है, बोथ बी एंड सी। दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन बी इज देयर डेमोक्रेटिक, ऑप्शन 18 में ए इज देयर इनफॉर्मल, 19 सी ऑप्शन जॉब सिक्योरिटी, एंड 20th ए ऑप्शन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपके 1 मार्क सारे हो गए। नाउ कमिंग टू अकाउंट्स।